So do remember कि solute potential, that is denoted as psi s, is always negative, and the amount by which it will decrease the water potential is actually a solute potential. सो सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो हमेशा निगेटिव रहेगा क्योंकि वो वाटर्स के मॉलिक्यूल को एंगेज करेगा. आर यू क्लियर? ये तब होगा जब ये वाटर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर है. लेकिन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस प्रेशर के कारण वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और वो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ चुकी है, नाउ इट इज डिनोटेड एज पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल. सो इफ वी कीप दिस सिस्टम अंडर प्रेशर, अगर हमने इस सिस्टम के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन के माध्यम से हमने इस सिस्टम को प्रेशराइज किया, तो ये जो प्रेशर है, दैट प्रेशर विल गेट ट्रांसफर्ड टू दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट प्रेशर विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नाउ कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल. आर यू क्लियर फॉर दिस थिंग कि हमने जब प्रेशर डाला वाटर के मॉलिक्यूल पे तो वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर पोटेंशियल which is denoted as psi w is equal to solute potential which is denoted by psi s plus it is pressure potential which is denoted as psi p. So the normal equation is psi w is equal to psi s plus psi p. Psi w is a water potential. It is a kinetic energy of water molecule. It is the random motion, and solute potential and pressure potential, they are the two factors. Solute potential will always decrease the water potential and solute potential is always negative, while the pressure potential will increase the kinetic energy and pressure potential is usually positive. So a pressure potential which is psi p is usually a positive figure. Clear? So here we have to understand two important things. We have to remember कि the pure water will have the highest water potential. So MCQ to remember are pure water will have the highest water potential and that is 0. Okay, so 0 is the highest water potential. Clear? Then solute potential is always negative. It is the amount by which the potential of pure water will get decreased after addition of solutes. Clear? So it will be always negative. This is negative because the pure water will have the highest water potential and that is conventionally 0. So whenever we will add some solute into it, the water potential will decrease. But this condition is effective when the water system is in constant pressure and constant temperature. If we increase the pressure of the water molecule, then it will increase the pressure potential and the pressure potential is positive. Clear for this thing? So under normal condition, when we are not applying any pressure to the system, then water potential is equal to solute potential. Water potential is equal to solute potential. So that is psi w is equal to psi s under
normal atmospheric pressure and constant temperature, and it is always negative. Under this condition, the water potential is always negative as it is equal to solute potential, and solute potential is negative. So under this condition, the water potential of solution, here when we add some solutes to the solvent, then that solvent will become solution. So a water potential of pure solvent, that is water, is always zero, but a water potential of a solution is always negative. Pure water, it is zero. Okay, pure water is a solvent, but water potential of a solution, water potential of solution is affected by the solute potential, and that's why it is always negative. Okay, this is everything regarding the standard terminologies of water potential, solute potential and pressure potential. Just to summarize, हमने कहा कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप समझने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज कौन सी है? तो ये है वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हम साई ये सिंबल से दिखाते हैं, और उसको गिनने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो है पास्कल। नाउ वाटर पोटेंशियल वो ड्राइविंग फोर्स है जो पानी को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाता है। This driving force is actually a kinetic energy of water molecule। ये water molecule की kinetic energy है दोनों स्टेट्स में, या तो फिर लिक्विड स्टेट में या तो फिर गैसियस स्टेट में। दोनों स्टेट में जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वाटर मॉलिक्यूल को एक कंटिन्यूअस रैंडम मोशन देगी। ये जो रैंडम मोशन है वो रैपिड और कांस्टेंट होगी। अब इसी रैंडम मोशन को जो काइनेटिक एनर्जी के वजह से है हमने कहा वाटर पोटेंशियल। ये जो वाटर पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पे। जितने वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। इसीलिए प्योर वाटर के पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है और उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। बट कन्वेंशनली हमने उस फिगर को ले लिया ज़ीरो। तो अब जब भी हम कोई सोल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर यानी प्योर वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन सोल्यूट ऐड करने के वजह से सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स एंगेज हो जाएंगे और वो एंगेज हुए मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी नहीं शो करेंगे। इसीलिए प्योर वाटर के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है हमेशा कम रहेगा। अब कम रहेगा तो वो जो प्योर वाटर है उसका हमने ज़ीरो ले लिया था, उसकी तो कोई पॉजिटिव फिगर थी नहीं। इसीलिए सॉल्यूशन का हमेशा वाटर पोटेंशियल ये ज़ीरो से कम हो जाएगा, यानी वो निगेटिव साइड में आ जाएगा। क्लियर फॉर दिस थिंग? ये जो निगेटिव साइड में आया वाटर पोटेंशियल ये है एक्चुअली आपका सोल्यूट पोटेंशियल। ये निगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सोल्यूट ऐड किए, ये सोल्यूट के वजह से कम हुआ, इसीलिए हमने इसको बोला सोल्यूट पोटेंशियल। आर यू क्लियर? नाउ ये तब था जब वाटर किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं था और कांस्टेंट टेम्परेचर पे था। अगर हमने वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी को हमने बोला प्रेशर पोटेंशियल। ओके, सो एक्चुअली वाटर पोटेंशियल को दो फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे, एक सोल्यूट पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल को हमेशा कम करेगा और प्रेशर पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल को बढ़ाएगा। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर पोटेंशियल जो है यानी साई W इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल यानी साई S प्लस प्रेशर पोटेंशियल यानी साई P। सो दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप। बट अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर
वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, और सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी जो हमेशा सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। क्लियर फॉर दिस थिंग। एंड प्योर वाटर का जो हमेशा वाटर पोटेंशियल रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा, एंड दैट फिगर कन्वेंशनली वी हैव टेकन एज 0. So this is everything regarding the standard terminologies, that is water potential, solute potential and pressure potential. Now in the next video we will try to learn about the process of osmosis in case of plant cell. Thank you.